Hello everyone, this is Dr. Tushar Mehta. I'm an orthopedic surgeon and your faculty of orthopedics. Well, today this video is for a lot of messages that I'm getting in my inbox. MS or DNB orthopedics, what do I do? See, please try to understand that if you are really interested in doing MS orthopedics, these are the basic things that one should know. First of all, MS orthopedics in any medical college should be reasonably good, as we kind of presume कि हर जगह पे ट्रॉमा जो है वो तो बेसिक आता ही है. So, if you go to any government medical college, you need to understand that you will always have an advantage of having a decent trauma, which will include nailing, which will include plating, which will include wiring, which will include everything. The scopy component, the arthroscopy component, I'm sure most of you must be aware of it. ये भी आज मेडिकल कॉलेज में अच्छे से हो रहा है. There are some superlative government medical colleges वहाँ पर even arthroplasty, knee replacement, hip replacement is going on at a good track. Even for spine, you can be posted under neurosurgery, और अगर orthopedics वाले spine कर रहे हैं तो वो भी एक government medical college में एक decent number में आपको exposure देखने को मिलेगा. But let us say if you go to a semi-private or a private medical college, then first of all, I want you people to understand one thing today, that over there, as far as trauma is concerned, the quantity of the patient by default, but obviously will be less. You may not be exposed to doing 30 forearm platings in maybe 2 months. You may not be exposed to 20 nailings of tibia or femur in a month. The number may be 4, maybe 5, maybe 8, maybe 10. Number will definitely be less. As far as scopy is concerned, I think more or less the number will be less than, of course, a government college, but utna bhi kam nahi hoga. As far as plasty is concerned and spine is concerned, definitely the number will be far more less. So quantity will be compromised for sure as far as the workload is concerned, but there will be a huge dent on the quality also. Now, the most important thing after exposure, after workload, is cutting, is hands-on. So obviously in a government medical college, your hands-on will be significantly higher as compared to a private or a semi-private medical college. And that is something which will बी एन एडिशनल फैक्टर, क्योंकि एक तो प्राइवेट कॉलेज में एक्सपोजर कम हो गया, ऊपर से हैंड्स ऑन भी कम हो गया. एंड ऑर्थोपेडिक्स, बिलीव मी, इज अ ब्रांच जिसमें पहले 3 साल में एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू स्टिल कैन कोप अप विद लेस एक्सपोजर इन सर्जरी बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डू एमसीए. तो अगर आपने 3 साल में कम हर्निया देखा है, कम हाइड्रोसील देखा है, कम कॉलेसिस्टेक्टोमी देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप आगे एमसीए न्यूरो सर्जरी करो. सो वो 3 साल का कम एक्सपोजर, कम हैंड्स ऑन फिर भी चलेगा, ऑर्थोपेडिक्स में नहीं चलेगा मेरे भाई. इवन दो इन फ्यूचर यू विल बिकम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, बट बिलीव मी, ट्रॉमा विल ऑलवेज बी द ब्रेड एंड बटर. तो वो चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है. नाउ there is one more element which will be there कि एक प्राइवेट कॉलेज में, I mean needless to say, you will have to shell out more money. Now, as far as the DNB orthopedics is concerned, there are certain facts which I want to share with all of you today. The first fact is it is at par with MS. There is no confusion at all. All notifications, all gazettes, everywhere it is clear. First of all, it is not a diploma, as many of the people, they keep messaging me कि सर ये DNB में डी डिप्लोमा है. अरे नहीं मेरे भाई, इट इज डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड. ये प्रॉपर 3 साल की एक डिग्री है, इसमें कोई डिप्लोमा नहीं है. यू हैव टू सबमिट अ थीसिस इन दिस, एंड वो प्रॉपर प्रोटोकॉल से होगी. इनिशियली इट वाज रन एंड स्टार्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, बट नाउ एवरीथिंग इज अंडर एनबीई. तो yes, DNB is validated even for government jobs that you want to do later on, whether in a private medical college or a government hospital or any corporate hospital. You will be considered at par. And in fact, in corporate hospital in tier 1 and tier 2 city, believe me, DNB is slightly preferred.
प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है दैट डीएनबी सर्जिकल ब्रांचेस में शुड बी टेकन ओनली इन सुपरलेटिव इंस्टीट्यूट. व्हेन आई से सुपरलेटिव इंस्टीट्यूट, आई विल जस्ट नेम अ few. Gangaram Hospital, Delhi. St. Stephen's Hospital, Delhi. So I have just named a couple of hospitals. There are many in every state. In state capital बहुत सारे superlative institutes होंगे जहाँ पर DNB orthopedics will be at par to a MS orthopedics in a tier 3 city. तो वहाँ पर आप DNB orthopedics ले सकते हैं because वहाँ पर quantity के साथ साथ the most important part, believe me, is quality. There will be, believe me, at most of the places more exposure to complex cases as compared to MS. Let's say if you join DNB Orthopedics, I'm just quoting an example. At Gangaram Hospital, you will be exposed to the most complex revision knee replacements and hip replacements and spinal fusions, and the academics will take a toll because the person who is operating over there, who's a consultant over there, he has zilch interest in teaching you, in answering your questions, because he is there on a payroll or on a sharing basis. वो वहाँ जाएगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, घर जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए एक एकेडमिक प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ेगा, दो चीजें पूछेगा, दो चीजें बताएगा, घर चला जाएगा. सिमिलरली हैंड्स ऑन जो है वो कम हो जाता है. आई टेल यू व्हाई वो क्यों कम हो जाता है. बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. पीपल आर पेइंग, दे आर शेयरिंग आउट लैक्स ऑफ रुपीज टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर. सो एनी पर्सन वुड नॉट लाइक कि भाई आप एज अ रेजिडेंट उसको हाथ लगाएं या उसको ऑपरेट करें या कुछ भी करें. बट इन 3 सालों में मेरा ऐसा मानना है दैट देयर शुड बी मोर ऑफ एक्सपोजर. हैंड्स ऑन अगर थोड़ा कम भी है तो वो चल जाएगा, बट वन शुड बी फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स. तो आई थिंक वो चीज बेटर है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the most important thing DNB orthopedics के अंदर, and it is the most concerning thing for most of the people, that yes, passing rate is very low. It is hardly 20 to 30%. Here I would like to say something, that the institute I joined many years ago for DNB orthopedics had a passing rate of 0% when I joined, and I cleared theory in first shot, practical in first shot. मैं उस चीज पे इतना यकीन नहीं करता था. मे बी आई वॉज स्टूपिडली ब्रेव, आई कैन से, बट आई वॉज लकी. आई गॉट इट क्लियर इन फर्स्ट शॉट. बट यू हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यू विल बी फार मोर academically trained in DNB orthopedics as compared to MS. Now you might be finding it a little funny that at same time I'm saying academics कम है और मैं कह रहा हूँ आप academically better train हो रहे हैं. तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे कैसे. आपको इतना पढ़ना पड़ेगा थ्योरी पेपर क्लियर करने के लिए कि आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एट पार नहीं, सुपीरियर होगा रादर देन एन एमएस स्टूडेंट. इवन दो एमएस पीपल वाचिंग मी राइट नाउ मे लिव इन डिनायल और मे नॉट एग्री विद मी, बट दैट्स ओके. डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स के एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में 2 दिन में 4 पेपर आते हैं, जिसकी तैयारी के लिए जिस कदर की थ्योरी आप पढ़ेंगे एमएस में एक लड़का वो उसको कभी नहीं पढ़ेगा. दैट इज माई वर्ड टू यू. So in theoretical knowledge, you will be far more academically trained as compared to an MS person, because an MS orthopedics person is not having any प्रेशर ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. बिकॉज जहां पर उसने 3 साल MS ऑर्थोपेडिक्स किया है वहीं पे उसके 2 प्रोफेसर इंटरनल बनेंगे, 2 बाहर से आएंगे और फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं. यहाँ पर जो बेसिकली पास रेट है दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 70%, बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर 3 years अंडर समवन, एंड इवन इफ यू कमिट अ मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट पर्सन इफ ही हैज सम सिंपैथी एंड एम्पैथी फॉर यू, बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आज गलती होगी लेकिन 3 साल लड़का ठीक तरह से पास कर दो. यहाँ पर कोई सिंपैथी नहीं है. क्यों सिंपैथी नहीं है? बिल्कुल नहीं है. बिकॉज जहां पे आपने 3 साल की डीएनबी की, आपका प्रैक्टिकल का सेंटर वो कहीं और आएगा और वहां के जो प्रोफेसर होंगे वो आपके इंटरनल बनेंगे. सो टेक्निकली आपके 2 इंटरनल वो होंगे जो आपकी जिंदगी में कभी आपको मिले भी नहीं, आप शायद उसी दिन उनसे पहली बार मिलोगे. प्लस ये प्रैक्टिकल एग्जाम अब ज्यादातर ऑस्की बेस्ड हो गया है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है. सो इसमें कोई अप्रोच या कोई इस तरह की चीज करने का भी कोई बहुत ज्यादा लॉजिक अब नहीं रह गया है. एक बात. दूसरी बात, इन डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स देयर इज अ वेरी बेसिक इशू दैट थ्योरी को अलग से पास होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. आप थ्योरी के
एग्जाम देंगे, आप पास होंगे, फिर आप प्रैक्टिकल के लिए वैलिडिटी आपकी रहेगी। अगर आप थ्योरी में फेल हो गए तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट थ्योरी का देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल की कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। एमएस के अंदर ऐसा नहीं है, आप थ्योरी का एग्जाम देंगे, आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वाले दिन मोर और लेस यही होता है, उस दिन थ्योरी का पेपर चेक होता है, पास फेल का फैसला हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। 3 थ्योरी का अटेम्प्ट देने के बाद अगर आप फेल हो गए, लेट्स से फर्स्ट में फेल, नो प्रैक्टिकल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, नो प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स, थर्ड अटेम्प्ट फेल, देन यू विल हैव टू कीप ऑन गिविंग थ्योरी। सपोज करते हैं कि आपने थ्योरी दिया, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना का ऑप्शन मिला, आपने एक दिया, आप फेल हो गए, दूसरे प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तीसरे प्रैक्टिकल में फेल हो गए, आपको फिर से थ्योरी देना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर उन 3 सालों में आपका अच्छा अकेडमिक्स चला तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादातर लोगों को नहीं आती है, लेकिन हाँ, मैंने देखा है, द वन हु गेट स्टक रियली गेट स्टक। डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स के अंदर योर एक्सपोजर विल बी, जैसे मैंने बोला, योर एक्सपोजर टू क्वालिटी ऑफ केसेस विल बी हायर, बट क्वांटिटी जो है वो आपको कम मिलेगी। तो माय पीस ऑफ एडवाइस टू मोस्ट ऑफ द पीपल इज दैट डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स शुड बी फॉलोड बाय एसआरशिप एट अ गुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ऐसा मैं सब लोगों को सलाह देता हूँ कि आज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव स्कोर्ड अ रैंक टुडे एंड यू आर नॉट गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग एमएस ऑर्थोपेडिक्स एंड यू थिंक कि मेरे को डीएनबी ठीक ठाक जगह मिल रही है, मैं लूं कि ना लूं। अगर नहीं लोगे तो ड्रॉप दोगे तो 1 साल जाएगा। तो मेरा मानना है कि क्यों ना हम ये 1 साल आज के बजाय वहां इन्वेस्ट करें, क्यों ना हम वहां इन्वेस्ट करें। फिर आपको लगता है कि हो सकता है मेरा पासिंग रेट जो है, डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स का पासिंग रेट कम है, तो आपके दिमाग में आता है हो सकता है मैं पास ना हो पाऊं, मुझे 6 महीने बाद फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो आज भी तो आप ड्रॉप ले रहे हो, तो वो भी तो 1 साल के अंदर आपको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सो यू विल सेव मोर टाइम। बट इसमें कोई दो राय नहीं है दैट इफ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन फॉर एमएस ऑर्थोपेडिक्स, आंख बंद, बात खत्म, एमएस लेनी है। इफ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन फॉर डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स, फर्स्ट प्रेफरेंस सुपरलेटिव इंस्टीट्यूट्स। If you are getting an option for both, let's say for example, I belong to, just hypothetically, I belong to Punjab. I am getting MS orthopedics, let's say in Patiala. I am getting DNB orthopedics, let's say in Delhi. I will choose what? MS orthopedics. Even for a superlative institute, I will not skip a GMC, a government medical college. But let us say I am getting MS orthopedics in a semi-private or a private medical college where I might be getting, due to some reason, or I might be shelling some money. Sorry, my parents might be shelling some money. And if I'm getting DNB orthopedics, my priority will be DNB orthopedics. बिल्कुल ही पीछे रैंक आई है, एमएस का कोई चांस नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइवेट में नहीं है, सिर्फ डीएनबी में है, रैंक करिए, देखिए। Dialect is an important thing, geography is an important thing, food is an important thing, dialect is the most important thing because interaction, conversation is important. You're from Haryana, you've never lived in Pondicherry, you don't even know that Pondicherry में कोई दिल्ली का direct flight नहीं है, and if you pick up DNB orthopedics in Pondicherry, it will be very difficult for you to survive. Same goes for people of Pondicherry to pick up in Delhi. तो प्लीज आप ज्योग्राफी को देखिए, बाकी चीजों को देखिए, जहां आप रहते हैं उसके आसपास डीएनबी उठाइए। अगर कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है और आपको लगता है कि यू जस्ट कैन नॉट टेक अ ड्रॉप अहेड, सो ये मल्टीपल फैक्टर्स के साथ आप इन चीजों को कवर करते हुए अपना ये डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि इज ऑर्थोपेडिक्स एन एंड ब्रांच। सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट एन एंड ब्रांच एनी मोर। फेलोशिप is a must. 2 options you can get in your beloved country India. I will advise that yes, you should do a 3 to 6 months of fellowship in whichever field you want. What are the fields, by the way? Spine is one field, ortho onco is another field, hand is another field. I'm seeing people are getting into microvascular as well. Scopy is an amazing and interesting field. Everybody, 90% people go for it. Then yes, there are foot and ankle is also coming up very well now. Even people are going into Ilazarov and they are doing only limb reconstructions through it. So one you can get in India, two you can get in country other than India. Seoul is very good, Singapore is very good. एशिया में तो ये हो गए, यूरोप में आप जर्मनी जा सकते हैं, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में कोई बहुत ज्यादा जाने का इतना फायदा होता नहीं है। सो इट इज नॉट एन एंड ब्रांच, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम इन फेलोशिप, बट बिफोर फेलोशिप माय प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू टेल एवरीबॉडी एमएस करो, डीएनबी करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे एमएस करो, डीएनबी करो, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद मिनिमम 1 से 2 साल की एसआर, बिकॉज एसआरशिप इज द टाइम व्हेन द पेशेंट विल बी डायरेक्टली अंडर यू एंड यू विल बी wholly solely responsible for the pros and cons of the patient, and that is at that point of time that you will develop
the risk taking ability, followed by, of course, fellowship. And then gradually you decide you want to enter into a government job or a private job or a corporate hospital, or you want to start your own setup. As far as starting your own setup is concerned, believe me, any laminar airflow OT, if you will set up today, I'm not talking about the infra cost, the real estate cost, the manpower cost, just about the capital expenditure, if I may say, that is around 75 lakhs to 1 CR, including most of the things. And then, of course, this is just the setup of the OT, including CM and most of the things. But yes, अगर आप इसको proper setup में लेके चलते हो तो real estate cost, the land cost is different at different places. So I cannot tell you today that how much will it cost, because it depends upon how much scale you want to start. तो वो आप पे डिपेंड करता है. एक रैंडम एक्सरे मशीन जो है वो आज 10 से 15 लाख की मिनिमम मिलती है. मैन पावर कॉस्ट कैन गो अप टू राइट फ्रॉम 50,000 rupees to 5 lakhs of rupees. So it all depends upon where do you want to establish, what kind of a tier of city that you are looking at. So establishment cost बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है. But most important चीज़ है that the perception that it is a branch of emergencies. See, if you are the only guy running a hospital and you have to take care of right from the appointment to the reception to the nursing to the gases of the OT and everything, so then it's an emergency for you. But if you are attached to a corporate hospital, believe me, hardly there are emergencies in orthopedics, because there are residents in every hospital to take care of the basic trauma. जब तक वो सारी चीज़ करेंगे तब तक सुबह हो जाती है. किसी भी फ्रैक्चर में, एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ जॉइंट डिसलोकेशंस, एक्सेप्ट फॉर पेल्विक फ्रैक्चर, एक्सेप्ट फॉर ओपन फ्रैक्चर. हिप डिसलोकेशन है, अगर कोई जूनियर नहीं है और रिड्यूस करने वाला, तो जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल जाना पड़ेगा. और तीसरी चीज़ जो इमरजेंसी है वो है कि अगर कोई पेल्विक फ्रैक्चर है तो जाना पड़ेगा. बाकी इसके अलावा कोई ऐसे इमरजेंसीज होती नहीं है. सभी फ्रैक्चर में पहले आपको सबको पता है, रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कोल्ड पैक, एलिवेशन एंड पेन रिलीफ. 2 दिन स्वेलिंग कम हो जाएगी, प्लास्टर लगा के रेस्ट कराओ, ऑपरेट तो 2 दिन बाद ही करना है स्वेलिंग कम होने. तो ऐसा नहीं है कि आपकी रातें रोज खराब हो जाएंगी. सो ऐसी कोई इमरजेंसी इसमें है. अब रही बात इसके अंदर कि फेलोशिप्स की, जहाँ तक बात है, सो फेलोशिप्स मैंने आपको कवर किया. फेलोशिप्स मोर और लेस कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट से मिलती है. देयर इज नो ऑफिशियल एग्जाम फॉर इट. देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट कीप्स पॉपिंग अप वेरी ऑफन कि एमसीएच का क्या रोल है. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. एडिनबरा में मिलती है, लिवरपूल में मिलती है, और भी 1-2 जगह मिलती है, बट कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. एम्स ऋषिकेश and couple of other institutes in India have also started giving MCH. You can go for it, you cannot go for it. Eventually the patient is going to come on your skill, your name, your nature. It is not going to come on your degrees. As of now, I will definitely agree with what the viewpoint on social media is, that yes, there is right now kind of saturation in orthopedics. मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा. रीज़न सिंपल है. जितने लोग हैं सबको दिल्ली रहना है, जितने लोग हैं सबको कोलकाता में सेटल होना है, जितने लोग हैं सबको हैदराबाद चाहिए, जितने लोग हैं सबको चेन्नई चाहिए. बट नोबडी वांट्स टू गो टू अ टीयर 2 और अ टीयर 3 सिटी, जहां पर आज की डेट में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो टफ है. As far as orthopedics is concerned, I give you my word today, even in tier 2, tier 3 cities, the number of orthopedic surgeons are getting more as compared to the people. तो सैचुरेशन है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा. लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सैचुरेशन कहाँ नहीं है. इंजीनियर्स में थी, एआई आ गई तो और प्रॉब्लम आ गई. तो कहने का मतलब क्या है कि सैचुरेशन हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा से रही. उतार और चढ़ाव चलते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी, देश बड़ा होता रहेगा, ट्रॉमा होता रहेगा, जॉइंट खराब होते रहेंगे, एजिंग के साथ होने हैं, स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ रही है, आर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत लोगों को पड़ रही है, लोगों को फंक्शनल जो उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसकी चाहत बहुत ज़्यादा होने लग गई है. तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि सैचुरेशन विल नॉट रिप्लेस ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इट विल रिप्लेस स्किल्ड, ट्रेंड, वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, अगर वो सैचुरेशन को ओवरकम नहीं कर पाए. Last thing I want to address here, what about girls in orthopedics? आज से 15, definitely it was a very big challenge. Believe me, उस वक्त पे बहुत दिक्कत आती थी. कोई लड़की अगर सोचती भी थी तो अव्वल तो परिवार नहीं मानता था, बाकी चीज़ें तो बात की बात है. आज की डेट में ऐसा नहीं है. मोर देन 100 गर्ल्स दे आर डूइंग पीजी रेजिडेंसी इन ऑर्थोपेडिक्स. इट इज़ नो लॉन्गर अ टैबू. साउथ इंडिया स्पेसिफिकली फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्थ में भी हो रहा है. डेफिनेटली उतना नहीं है जितना साउथ पे है, बट धीरे धीरे ये बेटर होता जा रहा है.
गर्ल्स के पास एक एडवांटेज क्या निकलता है, दे कैन लेटर ऑन परसू पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, दे कैन लेटर ऑन परसू स्कोपी, एंड दे आर डूइंग रियली अमेजिंग एट इट। ये सिर्फ एक मन की बातें हैं कि इसमें ताकत चाहिए, ये चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए। अदरवाइज आर इंस्ट्रूमेंटेशन इज सो सोफिस्टिकेटेड दैट यस वी कैन मैनेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विदाउट एक्चुअली रिक्वायरिंग द मस्कुलर। ये जो एक नोशन बना हुआ था ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गर्ल्स एंटरिंग इनटू ऑर्थोपेडिक्स यू कैन, थोड़े से इनिशियल टीथिंग इश्यूज आते हैं, ज़रूर आते हैं, कुछ को रेजिडेंट्स की तरफ से भी आते हैं, बट आई थिंक अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इसको करने में तो आप इसे ले सकती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। इफ़ यू वांट आई कैन कनेक्ट यू पीपल टू अ कपल ऑफ फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। सो जहाँ तक बात है ऑर्थोपेडिक्स की, आई थिंक आई हैव कवर्ड primarily most of it. Still, if there is anything left that you want me to answer, please put it up in the comment section below and I shall be able to cover that for you very soon. I wish you all the best. Take up orthopedics, it's an amazing branch, and hope to see you on the other side very soon. Thank you.